Hi guys. Hi guys, welcome to the another lecture of this series and today is lecture 14 and we are covering MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 5. So this is the second lecture of Unit 5 but overall अगर हम देखें इस series का Unit 3, 4 and 5 का तो this is lecture 14. Okay. So हम इसके पहले जो है वो दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं यूनिट 5 के and which were like population and health problems. So today we are going to start the third topic, which is family welfare programs and population control. Okay, so without any further ado, let's just start the lecture. So what do you mean by family welfare programs? देखो बहुत easy है, कोई इसमें अलग सी चीज नहीं है, जैसा हमको समझ में आ रहा है वर्ड टू वर्ड वैसा ही हम लोग देखेंगे. ओके. India became the first country to formulate a national family program in 1952. We know that the objective was to reduce birth rate to the extent necessary to stabilize the population at a level consistent with the requirement of national economy. ठीक है, क्या है नेशनल फैमिली प्रोग्राम 1952 में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी? फॉर व्हाट natures and for what aspects? So they wanted to reduce the birth rate. Okay, to the extent necessary to stabilize the population at a level consistent with the requirement of a national economy. तो birth rate को क्या करने के लिए, कम करने के लिए फैमिली प्रोग्राम लेकर आए थे, क्योंकि पॉपुलेशन का मैंने आपको बताया, हमने पहले पढ़ा, पॉपुलेशन का जो इशू है ना वो कम हो ही नहीं रहा था. इट वॉज नॉट एट ऑल कमिंग टू अ डिक्लाइन. Health education in India has a long history, and a Child Health Education Bureau (CHEB) is the apex institution for health education in India. 1956. Okay, so CHEB, which is Child Health Education Bureau, it has been established in 1956 and it is the apex institution for health education in India. You need to know this institution. Okay, so this bureau has 7 technical divisions. First is training, media, editorial, health education, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, फील्ड स्टडी, स्कूल हेल्थ एजुकेशन डिवीजन. अब देखो ये चीज जो है ना आपकी, ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है. मे बी CHE भी वो 3 मार्क्स में दे दें, फिर एक्रोनिम भी ना दें, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है किस चीज से रिलेटेड है. ओके. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्रोग्राम. वॉट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्रोग्राम? देखो कुछ कुछ चीजें तो है जो आप ओरली भी बता सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होंगी इसके लिए. फर्स्ट इज to promote the adoption of small family size norm on basis of voluntary acceptance. है ना, तो ये चीज आपको क्या है, मतलब आपको छोटी से छोटी फैमिली जो है उसको अडॉप्ट करना है और आपको उसको जो है वो, मैंने आपको जैसे वो चीज बताई थी ना जब पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि गिविंग एजुकेशन टू द न्यू एंड यंग कपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक व्हाई यू नीड टू कीप योर फैमिली साइज स्मॉल एंड व्हाई हैविंग मोर देन 2 kids is like not good for the country, because आप 3 to 4 kids रखोगे and similarly if one couple and then seeing that couple और भी couples जो है वो ऐसे ऐसे अगर बच्चे करते चले जाएंगे तो population तो इंडिया की तो फिर आपको पता ही है कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड्स. है ना, तो ये जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारी चीज़ों का भी प्रमोट करने के लिए जो है वो फैमिली प्रोग्राम लेकर आएगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1952 people were not aware of the facts that of course they can you know uh, like avoid the pregnancy. Okay, so to ensure adequate supply of contraceptives to all the eligible couples within reach. ठीक है, वही मैंने आपको बोला ना, the contraceptives and these methods are all of the same and people were not aware at that point of time about these. So population रोकना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था. To arrange for clinical and surgical services, so has to achieve the set targets. Okay, तो आपको services clinical और surgical level पे आपको achieve करनी होंगी in order to, if somebody comes for the abortion, so you are able to do it, or it is like advised to do it or not. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लीडर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स. वही बात आ जाती है, एनजीओ वगैरह को काम बहुत अफेक्शन बहुत जो है वो जो एक्यूरेटली करना होगा, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें थोड़ा ध्यान में रखनी होंगी. ओके.
नेक्स्ट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो कौन कौन से लेवल पे जो है वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए, क्या क्या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में हुआ, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, is a government mandated program to voluntarily sterilize a specific group of people. Sterilization removes a person's capacity to reproduce and is usually done through surgical procedures. तो sterilization किया गया मेल्स का, उसमें जो है तो जब आपका स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अ वुमन प्रेग्नेंट, ओके, सो दैट इज व्हाई this was one of the family welfare programs at that point of time. The next was IUD, which was intrauterine device, is a small, often T-shaped birth control device that is inserted into the uterus to prevent pregnancy. Now you know that it is a T-shaped birth control device which is inserted into the women's uterus in order to protect in order to prevent the pregnancy, right? IUDs are one form of long acting reversible birth control, okay. Then next is a contraceptive program. So these are easier from these two. Methods of contraception include oral contraceptive pills, condoms, withdrawal, and fertility awareness based methods. So these were the methods with which using which you can avoid the pregnancy, okay. Next is family planning insurance scheme. FPIS was introduced on 29th of November 2005. आप देख रहे हो मतलब 1952 के बाद जो है अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम है वो कब लेकर आई गई, 2005 में, इतना टाइम लग गया मतलब, ठीक है। विद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी टू टेक केयर ऑफ द केसेस ऑफ फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम स्टरलाइजेशन एंड आल्सो प्रोवाइड इंडेमनिटी कवर टू द डॉक्टर हेल्थ फैसिलिटी परफॉर्मिंग स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। तो देखो लोग घबराते थे बिकॉज काफ़ी डेथ्स होने लगी थी सडनली स्टरलाइजेशन के थ्रू, और तो वो चीज़ कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही थी उसकी वजह से बहुत, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है उसमें एक स्टडी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इज दिस ट्रू कि यू नो इट इंक्रीजेस द it increases the uh, it increases the level of pregnancy levels. So you need to just go through that. And then next is Janani Suraksha Yojana, JSY. This is the very famous one and you need to learn the date क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी रेलेवेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं आने के। इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM. It is being implemented with the objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among poor pregnant women, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिलीवरी वो एक अच्छे से इंस्टीट्यूशन में हो, हॉस्पिटल में हो, जहाँ पर उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ऐसी जगह पे होने के लिए आपको जननी सुरक्षा योजना स्कीम को यूज़ होता है। And it was launched by the PM in under implementation in all states and UTs with a special focus on low performing states, जहाँ पे आपको हेल्थ केयर को लेके बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मेंस है, वहाँ पे इसको ज़्यादा इसमें एम्फेसिस दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे हमें ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ पे अवेयरनेस कम है हेल्थ केयर को लेके। द सिक्स्थ इज न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स ऑफ पुअर ग्रुप्स इन अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल एरिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सारे तरह के न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, और लाइक सिटीजन्स को प्रोवाइड करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, और चिल्ड्रन को भी इन ऑर्डर टू जस्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम माल नरिशमेंट, ओके। सो दिस वाज इट। देन नेक्स्ट इज अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम. The urban revamping scheme was initiated in the year 1993 and 94. The UP state government has sanctioned health post and city family welfare bureau. In addition to these health posts, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स आर ऑल्सो फंक्शनिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो हेल्थ पोस्ट बनाए गए, फिर एक अपना सिटी फैमिली वेलफेयर ब्यूरो जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, फंक्शनिंग थोड़ी सी आपकी आसान हो जाती है अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से जो है वो इनिशिएट किया। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, क्या इम्पैक्ट होगा ये तो देखो आपको काफ़ी चीज़ें हद तक पता होंगी कि अगर आप फैमिली प्रोग्राम जो है वो अगर लॉन्च करते हो तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन आपकी स्टेबलाइज होगी, आपको नरिशमेंट मिलेगा, यू आर गेटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, सो
आप जो है वो माल नरिशमेंट की चपत में नहीं आओगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. First is nearly 98% of women and 99% of men in the age group of 15 to 49 have good knowledge about the method of contraceptives. Okay, since they started using it, तो उनको पता चला कि okay this works और ये चीज वाकई हमारे लिए सही है. ठीक है. Then next, over 97% of women and 95% of men are knowledgeable about female sterilization. Not only male, they also got to know that yes, there is a thing called female sterilization, and also then also the condition what we call pregnancy that can be avoided. Okay. Next, 93% of men have awareness about the usage of condoms. Okay, so this was also very important. About 80% of women have a fair knowledge about contraceptive pills. Role of community health nurse in family welfare programs. So ये हमने देख लिया कि what was the positive impact of family welfare program. अब हम देख रहे हैं कि community health nurse का जो है वो क्या रोल होता है family welfare program में. देखो, survey work, collecting of demographic facts, making list of homes and finding out housing location, collecting information about pregnant mothers, eligible couples, explaining necessity of family planning. So these are the some of the role of community health nurse in the family welfare programs. क्योंकि देखो nurse are the first uh, you can say that person of contact which goes on with the rural people, so it is very important for her to be educated enough so that she can aware the other people. Okay, so that's why we need to address this fact that she needs to be, you know, understood with the things, clear with the things, and she should have the clarity of the usage also. Like if teaching the other couples, she should know that what she's teaching rightly or not. Okay, so this is very important. Next, population control. सारी चीजें इसी पे अभी रोल ऑन कर रही हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर, फैमिली हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके. Recent data from National Family Health Survey (NHFS) shows that India's population is stabilizing as the TFR is on decline. हमारा जो TFR है वो decline हो रहा है. So definitely we are on the verge of stability right now. Okay. Then steps being taken by the government for the population control. First is Mission Parivar Vikas. The government has launched Mission Parivar Vikas for the substantially increasing access to contraceptives and family planning services in 146 high fertility districts with TFR of 3. तो जहां पर उनको लगा कि fertility rate 3 above है या फिर 3 है, वैसी हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लॉन्च किया और उन्होंने देखा कि इसका जो है एक्सेसिबिलिटी आप बढ़ा दो. ठीक है. Districts are Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Assam. That itself constitutes 45% of country's population. मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने ही अगर आप स्टेट्स को लेकर चलो तो पूरी कंट्री की 45% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन के बारे में आप बात कर रहे हो. आधी पॉपुलेशन जो इन स्टेट से आती है. ठीक है. तो इन स्टेट्स में जो है वो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट, न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस. New contraceptive is injectable contraceptive have been added to the existing basket of choices. different अब चीज़ें आने लगी हैं डेफिनेटली. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को लेकर आना, लोगों के दिमाग में, जहन में डालना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो important होती हैं in order to control the population. Next, clinical outreach COT scheme. The scheme has been launched in 146 Mission Parivar Vikas districts for providing family planning services through mobile teams from accredited organizations in far-flung, undeserved and geographically difficult areas. तो ऐसे एरियाज में जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्विसेज पहुँचानी है थ्रू मोबाइल टीम्स. मोबाइल टीम्स मतलब ऐसी टीम्स जो है वो मोबिलिटी में है, जो कंटिन्यूसली जो है वो रन कर सकती हैं और ट्रांसफर हो सकती हैं इधर से उधर. दे कैन गो. ओके. सो दीज टीम्स आर वेरी मच नेसेसरी. और देखो हर कोई गांव में जाना नहीं चाहता, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. ठीक है. देन स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय आशास एट डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरीज. मैंने आपको बताया रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है आज भी रूरल एरियाज में इफ़ अ वुमेन गॉट प्रेग्नेंट तो वो ये सोचते हैं कि हम घर पे डिलीवरी कर देते हैं, लाइक है ना, जो पहले वैद्य वगैरह कर देते थे या फिर कोई भी वहाँ की जो है वो एक एजेड महिला होंगी उनको बुला के जो है वो डिलीवरी कर लेंगे. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको उस टाइम पे कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक केस हेल्दी हो.
आप लेबर पेन हो ही आपको, या फिर आपको जो है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी हो, ज़रूरी नहीं है ना, आजकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हर एक रूरल एरिया में हम ऐसी सर्विसेज अवेल करवाएं जिसमें जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। नेक्स्ट, scheme for ASHAs to ensure spacing in births. Next, scheme for provision of pregnancy testing kits in the drug kits of ASHAs for use in communities so that they can know कि they are pregnant, because sometimes, most of the times in fact, they are not sure about it, their pregnancy, और फिर abortion भी नहीं हो पाता है because the baby is like in a grown up age, grown up like काफ़ी एक certain weeks के बाद आपका जो है abortion possible नहीं होता है, right, it becomes difficult। तो ये चीज़ जो है वो advisable नहीं होती है, इसलिए अगर initial days में पता लग जाए तो it can be possible, you know, to terminate the pregnancy। Okay, sorry guys। Appointment of dedicated RMNCH plus reproductive, maternal, newborn child and adolescent health counselors at high case load facilities। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्कीम के अंदर फॉल कर जाती हैं, विच इज़ RMNCH प्लस। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है, खास ध्यान देना है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक आया हुआ है ये क्वेश्चन। इम्प्रूव्ड डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज थ्रू अ 360 डिग्री मीडिया कैंपेन। ओके, अब मीडिया तो देखो हर जगह ही फॉल कर जाती है, मीडिया का यूज बहुत जगह पे आजकल रेलिवेंट हो चुका है। ओके, सो यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट मीडिया हैज really brought a major change in society। नेक्स्ट, पॉपुलेशन पॉलिसी। अब देखो, अगर आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हो, वैसे ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट अगर आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हो, आप पॉपुलेशन को बचाने की बातें कर रहे हो, तो पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ना वहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये अंडरस्टूड सा फैक्ट है कि आपको पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ओके, इन 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी। तो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई कब? 1976 में। Some of the measures to check the population growth as part of this policy include increase the minimum legal marriageable age for boys and girls to 21 and 18 respectively। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। National health policy was adopted in 1983, ये हमें पता है, we have learned this in prelims, which emphasized securing the small family norm through voluntary efforts and moving towards the goal of population stabilization। A committee on population was appointed in 1991, which submitted its report in 1993, in which recommended the formulation of a national population policy to take a long-term holistic view of development, population growth and environmental protection, and to suggest policies and guidelines for formulation of programs and a monitoring mechanism with short-term and long-term perspectives and goals। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक अच्छा सा एम दिया गया है आपको कि क्या एम है इसका। तो इसमें उन्होंने बताया कि they wanted to have a holistic view of development, population growth and environmental protection। Okay, next, accordingly an expert group headed by Dr. M.S. Swaminathan was set up to create the draft national population policy। The national population policy finally came into the force in 2000। तो जो national policy हमारी आई वो आई 2000 में। अब हम देखेंगे हमारी national policy 2000। It reiterated the government's resolve to push for voluntary and informed choice and agreeability of citizens to get maximum benefit from reproductive health services। तो देखो, इसमें लोगों ने ये कोशिश करी कि जो हमारे citizens हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा benefit हो इन programs का which are running by the government। Okay, next, it embarks on a policy outline for government for next 10 years to improve the reproductive and child health needs of people of India, which include issues like child survival, maternal health, contraception, etc। तो देखो, हर जगह पे वही वही चीज़ों पे काम होगा। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, आपकी चाइल्ड की जो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो एक इन्फेंट को 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक जो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, उनके खाने पीने का भी ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीज़ों पे काम किया गया। और अगले 10 साल, मतलब अगर 2000 है तो ये 2010 तक का जो है इन्होंने एक होलिस्टिक एक अपना प्लान बना लिया है कि इस टाइम तक जो है हमें ये चीज़ें अचीव करनी है। ओके, नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 टू बी मेड फ्री एंड मैंडेटरी। दिस वॉज ऑल्सो इंक्लूड प्लान टू चेक ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये भी एक इशू था जिस पे काम किया गया, ड्रॉप आउट रेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। विद दिस पॉलिसी
set on to decline. Okay, the policy also aims at curbing the IMR infant mortality rate to less than 30 per thousand live births. तो IMR को कम करने के लिए जो है वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने काम किया कि, और ये उनका टारगेट था कि they wanted to bring it less than, like lower than 30. MMR will also be brought down to less than 100 per 1 lakh live births. A high MMR is a symbol of economic and social disparity of the fairer sex. It also points to heightened inequities in terms of healthcare and nutrition. तो MMR पे भी काम गया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही देखो, पॉपुलेशन में क्या होता है, IMR होता है, MMR होता है, फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट होता है, क्रूड डेथ रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी मेन थी, ओके, जिसपे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने अपना मुद्दा रखा और उन्होंने डिसाइड किया कि ओके दे वांटेड टू अचीव दिस। नेक्स्ट, another important feature is of the policy is to attain universal immunization of all the children against preventable diseases. तो जो डिजीज हम बचा सकते थे, जैसे पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया और डायरिया हो गया, इन सब की जो है वो आपकी क्या है, आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज किया गया कि जो है वो हेल्थ केयर फिर आगे उनको इतनी डेडली डिजीज से जो है वो टैकल ना करना पड़े। The policy will also act against child marriage and promote 20 years as the right marriageable age for girls. The legal age for same is 18 years. Okay. तो चाइल्ड मैरिज को जो है वो आपको रोकने का इसमें बोला गया, ठीक है। और गर्ल्स के लिए बोला गया है कि 20 ईयर्स जो है आप 20 ईयर्स में शादी करिए। वैसे लीगल एज 18 थी, फिर भी इस पॉलिसी में बोला गया कि नो, 20 इज good. 20, you should, if you want to marry a girl, then you should marry if she attains the age of 20. The policy will actively support a target of 80% institutional deliveries and 100% deliveries by trained persons. ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि trained persons की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज नहीं तो कल उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते कि एक डॉक्टर, एक गायनाक अगर सही तरीके से आपका करे है, वो चीज़ आपका रूरल एरियाज में कोई अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। It also seeks to achieve 100% registration of births, deaths, marriages and pregnancy. Okay, तो इस चीज़ में भी अपना आपका इसमें ध्यान रखा गया। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल दी कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, तो इन डिजीजेस पे भी इनका जो है वो फोकस था कि सारे डिजीजेस जो है वो उससे हमको प्रिवेंट करना है। इट विल ऑल्सो स्ट्राइव to integrate Indian systems of medicine to provide reproductive and child health services by reaching out to households, ठीक है। तो जगह जगह घरों घरों में पहुंच पहुंच के जो है वो इन्होंने अपने मेडिकल सिस्टम को बताना चालू किया कि क्या आप ये दवाई यहाँ से खरीद सकते हो। फिर आप जो हैं, आपको अगर अपने बच्चे को कुछ दिक्कतें हैं, आपके बच्चे को इम्यूनाइज करवाना है, तो आप फ्री में जो है वो पोलियो का टीका, या फिर ये आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कितने चलते थे। हम लोग भी अपने बचपन में हम लोगों ने भी वो, तब मिस्टर अमिताभ बच्चन वॉज टू लाइक टू फेमस फॉर पोलियो प्रोग्राम्स। तो 2 बूंद जिंदगी की तो हम लोगों ने भी खूब लगवाई हैं, पोलियो के टीके खूब लगवाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमने खुद देखी हुई है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। Then it thus will seek to integrate and converge all the related social sector programs so that complete family welfare and health can be taken care of and properly maintained. Okay, so ये चीज़ देखो, सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आप इंटीग्रेट कर देते हो सारे प्रोग्राम्स को, तो आप खुद देखोगे कि कंप्लीट एक फैमिली आपका पैकेज बन जाता है ना। कैसे पैकेज बन जाता है, तो आपने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी ऐड कर दिया, आपने हेल्थ केयर प्रोग्राम को भी ऐड कर दिया, आपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्लान को भी आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है वो फ्लुएंटली वर्क करती हैं, और जब फ्लुएंटली सारी स्कीम्स वर्क करेंगी तो पॉलिसी लैक्यूना नहीं होगा, है ना। तो जब लैक्यूना नहीं होगा तो एवरीथिंग विल गो वेल एंड वेरी स्मूथ इन नेचर। सो दैट्स वाई the policy integration is very important. Okay, so this was our lecture for today, guys. We have completed family welfare programs, and then population, we learned about population control, what were the initiatives taken by the government, and then population, we learned about population policy 2000 and the aims, all of that, their the steps whatever they are taken under national policy 2000. Okay, so yeah, this is it for today's lecture.
टिल देन स्टडी वेल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।